In latest development in the Noida techie death case, a major revelation has emerged from the victim Yuvraj post-mortem report. The report says Yuvraj died due to cardiac arrest, triggered by nearly 2 hours of being trapped in ice-cold water amid extreme cold. Officials add that severe panic and fear for life likely led to the fatal heart attack. Earlier, the Noida authority took punitive actions over negligence in the case. Show-cause notices have been issued to officials and employees linked to traffic work in Sector 150. The services of junior engineer Naveen Kumar attached to the Noida traffic cell have been terminated with immediate effect. The authorities have also sought a detailed report on allotment and construction work of Lotus Builder. All departments have been directed to conduct fresh safety audits to prevent such tragedies in the future. The victim in his tragedy, Yuvraj Mehta, was returning home from work when his car went out of control amid heavy fog and fell into a 20 feet deep pit dug for the basement of an under-construction building in Sector 150. Police say they have received information around 12:15 am and launched a search operation. Rescue teams from the fire department, SDRF, NDRF and local police were deployed and the body was recovered later on Saturday morning. However, an eyewitness has alleged that rescue efforts were delayed and claimed the victim could have been saved if help had reached earlier. He said Mehta was initially seen standing on top of his car using his phone's torch to signal for help. Police have denied negligence, saying poor visibility and dangerous conditions inside the pit hampered rescue operations. An FIR has been registered against 2 real estate developers based on a complaint by the victim's family, who alleged repeated warning to authorities about the unsafe site were completely ignored. Following the incident, local residents staged protest and held a candle march demanding justice. After the protest, the Noida authority installed barricades at the accident spot. Police said fog and possible overspeeding may have contributed to the accident and further investigation is underway. सर, एक दुखद घटना हुई है सेक्टर 150 में, क्या कहेंगे? सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है, उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। सर, वो किसकी जगह की इस कारण खाली थी वो? अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी वो। सर, वहाँ मोड़ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, इसलिए घटना हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। सर, तो ये किसकी लापरवाही हुई है? जांच उपरांत जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या आप लोग घटनास्थल पर जाएंगे सर? हाँ, बिल्कुल। और पानी कहाँ से आया सर इतना? इसकी जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी कहाँ से इतना पानी आया वहाँ पर। उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था।
जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोहड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए।